Good evening. Hi, everyone. It's a pleasure to meet you all in this platform. Welcome to Transformation through NLP. Transformation means what? Transforming our own life, transforming the way we think, transforming something which is you think is missing or something you want in your life. How we can use NLP and get the result in a very faster and a powerful manner. That is what we will be trying to see today. First, let's understand what is NLP. NLP is how we structure our personal experience. Now, let me tell you, when I have an experience, when I try to experience an event, maybe a sad, maybe a happy, maybe neutral, maybe anything, how am I experiencing this? Because what I experience and what the other experience, there are quite a different ways of experience. My experience and the other person's experience need not be the same. Every person's experience for a given situation is different, and that happens because of the way we process the information of NLP in our mind. Whatever we try to experience, we are also experiencing in accordance to the value and beliefs which we have created from birth. After birth, because of the family, because of the way we have been brought up, we create certain values, certain belief system. So whenever we are trying to experience an event, we also experience with certain things which are already there in our subconscious mind. We create an emotional state and we construct an internal world of our experience. This experience is unique to you, unique to me. My experience is unique to me, your experience is unique to you. And why you do that? If something, what we are trying to do, why you do that, if you are able to understand, and what you should do that to bring a change in your way of thinking, then it becomes an easy. NLP helps in that. The techniques are very simple, very powerful, and it's like a magical tool. It happens immediately. Let me ask you one thing. If you want to become angry on a particular situation, do you react immediately or you take time to go home, analyze, sit, and then become angry? No. When a situation occurs, if it is not in accordance to your thinking, not in accordance to your pattern, you suddenly become angry. And when you become angry, you start blurting out immediately or react immediately. That means the brain acts immediately. So if you do not want to be angry, it is not that you have to wait for years together to come out of that anger. It can happen now immediately. That is what the NLP helps us in trying to understand those situations. Now, this NLP system was created by Mr. Richard Bandler and John Grinder. They were the two people who started the NLPs in 1970. And I am proud to say that I am a direct student of Richard Bandler. I have not learned from anybody else. I am a master international licensed NLP practitioner who has undergone training under Richard Bandler in London. Both the practitioner and the master practitioner courses. So I am a direct student of him. Now let's understand one thing. I'll just try to give you or recollect an event in your life. It could be a sad or a happy event. Can you recollect an event in your life? Okay. Now, how do you know that that event what you have recollected has a particular kind of an emotion? Is it happening now? No. You are just thinking, you are imagining, you are recollecting. You are recollecting the memory and trying to feel that emotions at this juncture of time. Let's say if I ask you what you ate on say 3rd of January 2020, will you remember? Not possible.
unless and until it was an event in your life. It could have been a function or a happy moment, or you are into a routine of eating the same thing every day, every time. Otherwise, it is difficult. If we look back into our life, there are different period of emotions attached and memories attached, and those memories are literally dependent upon the way we attach the emotion. Unless you attach an emotion, it can be happy, it can be a sad, it can be an excitement, some emotion or the other has to be attached. Once you attach that emotion, then only that event goes into your mind as a memory. And if you start recollecting that event time and again, time and again, time and again, it becomes a bigger memory in your life. Now, try to understand, if there is an accident, people will give 10 different stories. Why that happens? Why do you give 10 different stories if an accident has occurred? Why the accident has occurred in a manner, but everybody's perception is different. The reason is, whenever we try to look at an event, we have our own perceptions, we have our own values and beliefs, we have our own system of understanding the language pattern, we have the ecology at with what time, what emotional state I was when that event occurred. Maybe that same event at different time wouldn't have been that important, but that event would have occurred at a juncture of time. My emotions would have been different. Depending upon that, we try to create an emotion, we try to put an emotion into the memory of your past. Now just tell me, frankly, the event, what the emotion, what you are carrying for a particular event, whatever it may be, will that same emotion be with everyone associated with that event? It's impossible. Because everyone is trying to look at that event from a different perspective, of a different angle. It's like something I have put an article in my hand and trying to look. Somebody is looking from this direction, somebody is looking from this direction, somebody is looking from this direction, and somebody is looking from this direction. Depending upon which kind of directions you are trying to look, your perspective to that event changes. So, first, most important part of your life is try to understand no event has a meaning by itself. We give a meaning. Now, say we have given a meaning of happiness or sadness, and especially of a sadness that we have given. Now, if we can change the meaning of that event in our mind, in our thinking, in our way of perceiving that thing, that event changes in our mind. The perspective of that event changes in my mind. The NLP deals with that to give you how to change that perspective, that thinking in your mind. So we actually process 2 million bits every second. That is from our body parts, from every different parts of our body, the messages are coming to you. You are processing those messages. You are getting information from, say, suppose you are traveling from one place to the other place. There you may be passing so many people, so many streets, lamps, everything. But you will not remember each and every aspects of it. Maximum thing we delete. Maximum things we delete. We only try to see which is required, which is important, which has a particular impact in your values, in your belief, which you want to see. I'll put it, the best word is the thing which you want to see, only that you will be able to see. Rest all you will delete it from your life. Then we have an ability of generalizing. Just try to see what do you look at it as if there are 4 circles and a square. To be very frank, they are not 4 circles. They are 3/4 circles, 4 put in such a way that they look as if there is a square above a circle. That is
illusion, what we call, and then we distort. Maybe when it is dark, if you look at this kind of a rope, you may think it is a snake. That's how the chaya became the ghost in the olden days, when, because on the trees you would find lot of shadows, and those shadows our mind can perceive and create different kind of images, and that's how the ghost theory came into life. So even what you process is also getting distorted, generalized, and lot of things deleted, and then you are, with your values, with your perception, you are giving a meaning to an event. So dear, today understand, whatever has happened. We cannot go back and recorrect or relive that life, but try to understand that event, what you have given the meaning in your mind at that given juncture of a time, is, that's why we call it is a mithya, is a maya. Life is something called mithya or maya. The reason is it is false. What was the ecology? What was this emotional setup at that juncture of time? What you were thinking? What you liked or disliked? All this put together, the event has given a meaning in your life. Okay, according to you, that may be the best perception what you have. If that is affecting your life, it is time to change. It is time to come out. We'll show you different exercises how you can come out of that and create a new meaning to your life. Because what happens is, if suppose I want tomorrow to be something different, I have to work something today such that my tomorrow will be different. What I am today is because of my past perceptions. If you think you want a different lifestyle, if you want to have a different change, if you change in any part of the aspects of your life, you have to now start thinking in a very different perspective altogether. That perspective, what you start thinking today, will create your tomorrow, your future. So what we say is, we process 134 bits of information in chunk of 7 or 2 out of that 2 million instructions. That means try to understand how much information we have deleted to give a meaning to an event. Let's also understand the first part we have understood. The first major thing we have to understand is, no event has a meaning by itself. We are giving a meaning to it. So let's take the responsibility that whatever the thinking or whatever you have the emotions, however right or wrong, whatever people would have done, if you take the responsibility, that meaning is in my head because of my perception, because of my values and my beliefs, then that the step will come that you are ready to change it. So let's go into a little more deeper how our brain works. Try to look at this diagram. Right? Now, if you look at the diagram, there is an external event which is trying to come into you. That means we receive information through 5 senses. Do you agree? Actually, there are many senses. Major, let's understand today with the 5 senses we are receiving the information. By birth, we have programmed ourselves. First, by birth, 2 major things come: the fear of falling, fear of sound. This is the only 2 things we are born with. And third is, we are born with the genes, that is the color, the height, the DNA will give what kind of a color you will have, voice you will have, the height you will have, the textures you will have. That's the body structure and the information the DNA has it. But the attitude, the processing, we come with 2 major things. One is fear of falling, fear of sound. Okay, ठीक है. तो हम जो since there is a request कि मुझे हिंदी में बोलना है, तो I'll change my language to Hindi and let's see. हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन 5 इंद्रियों द्वारा आती है.
पांच इंद्रियों से भी ज्यादा हमारी इंद्रियां हैं, हम उसके बारे में आज नहीं बात करते हैं। वो पांच इंद्रियां मान लीजिए आपके पास आती हैं। आप जब पैदा हुए होते हो तो हम दो ही चीज से पैदा होते हो एटीट्यूड में, एक फियर ऑफ फॉलिंग, एक फियर ऑफ साउंड। बाकी जो है हम क्रिएट करते हैं, हम लर्न करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसा मेरा एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर 1000 बच्चों को पैदा होते ही अगर अलग तरीके से, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कुछ सिखाया जाए, डेफिनेटली वो लोग वो सीखेंगे, क्योंकि हम एज वी ग्रो वी स्टार्ट लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एज वी ग्रो वी स्टार्ट लर्निंग व्हाट वैल्यूज एंड बिलीव्स आर इम्पोर्टेंट। वो हमारी फैमिली से आएगा, हमारी टीचिंग से आएगा। Then we start developing certain attitudes, certain decision taking capabilities, traits, memories, language, and then we are able to understand कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, time and space we are able to understand। बचपन में मैं क्या हुआ था, आज मैं क्या हूँ, कल क्या था, that all these things can be is the brain process। तो जब कोई इंफॉर्मेशन आता है तो हम सबसे पहले हमारा ब्रेन वो इंफॉर्मेशन को ये चीजों से प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है कि एक आप ये जो इवेंट आया इसका मीनिंग ये है। ये मीनिंग आने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक स्टेट, वो हैप्पी स्टेट हो सकता है या सैड स्टेट होता है, वो सैड स्टेट क्रिएट करते हैं या हैप्पी स्टेट क्रिएट करते हैं, और इसके बाद वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है, और वो बॉडी पर इफेक्ट कर हम बिहेव करते हैं। और ये जो चीज होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। जैसा अगर मैं बोलूं कैट इज ऑन द वॉल, जो कैट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो कैट आप नहीं देख रहे होगे, मेरे दिमाग में कोई और कैट होगी, आपके दिमाग में और कैट होगी, क्योंकि कैट जो है आप अपने हिसाब से जो परसीव करते हो, वॉल भी आप जो अपने हिसाब से परसीव करते हो वो। मैं जो बोल रहा हूं या कैट इज ऑन दी वॉल अगर जो बोलना है, मेरे माइंड के अंदर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में एक प्रोसेस हो रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है, विच इज रैंडमली हैपनिंग। कैट कहीं है, वॉल कहीं है, और सेंटेंसेस कहीं है, ग्रामर कहीं है, वो सब मिलाकर मैं वो चीज को लेके आकर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे ही आप सुनते हो सीक्वेंशियली सुन रहे हो, लेकिन आपका माइंड इमीडिएटली रैंडमली जाके कैट, वॉल सबको क्रिएट करके वो अपने इंटरनल रिप्रेजेंट, अपने वैल्यूज के हिसाब से वो क्रिएट कर आपको एक मीनिंग उसका देता है। कैट इज ऑन द वॉल कोई इमोशनल मीनिंग नहीं है, तो आपने उसको समझा है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एसोसिएटेड उस चीज के साथ, इमोशनल अगर एसोसिएटेड है तभी आएगा, नहीं तो आप उस चीज को अलग नजरिए से देखेंगे और थोड़ी देर के बाद शायद आप वो भूल भी जाएंगे। अगर वही चीज आपके इमोशनल चीज के ऊपर लगता है तो क्या होगा कि आप एक इंटरनल रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्टेट करेंगे, एक बॉडी लैंग्वेज, एक साइकोलॉजिकल स्टेट लेके आकर आप बिहेवियर पैटर्न आप डेवलप करोगे। नाउ द थिंग इज, अगर हम हमारे ये कोर प्रोसेस के अंदर चेंज करें प्रोसेसिंग, कि जो आ रहा है इंफॉर्मेशन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के पहले उसको हम क्लोज कर दें, तो हमारा स्टेट और बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पे हमारा असर होगा, हमारी मेमोरी पे असर होगा, हमारे सोचने के ऊपर असर होगा। तो एनएलपी कहता है कि हमारे पास 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आ रहा है, हमने क्रिएट करके रखा है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन लेके आके, स्टेट लेके आके, देन वी आर क्रिएटिंग बिहेवियर। अगर आप अपने आप को पहचानते हो तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से रोक सकते हो, और उस रिप्रेजेंटेशन, उस चीज को आप अगर दूसरे अंदाज से देख सकते हो, दूसरे एंगल से देख सकते हो, देन योर वे ऑफ perceiving that situation will become different। फियर, एक कॉमन फियर आता है कि फियर ऑफ फैमिलीज में होंगे, कॉकरोच को लेकर कई जगह कई लोग फियर करते हैं, छिपकली को लेकर फियर करते हैं, व्हेन वी गो टू फॉरेन बिग स्पाइडर्स को देखे, स्नेक को लेकर फियर करते हैं। फियर क्या होता है? मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा डर है, तो खाली मैं सांप के बारे में बोलूं तो the snake may not be there, suddenly palpitation आ सकते हैं। किसी को अगर just try to imagine, अगर आप अपने माइंड में जिस चीज से भी डर रहे हो उसका इमेज एकदम बड़ा कर आप सोचोगे, दिमाग के सामने रखोगे, तो क्या होगा? वो चीज वहां नहीं रहने के बावजूद भी हमको वो फियर क्रिएट होगा। That means what? फियर चीज की वजह से
तो है, लेकिन उसको हम खाली सोच कर परसीव करने के हिसाब से और उस इमेज की क्वालिटी के हिसाब से वो फियर को हम ज्यादा या कम अपने मन में करते हैं. दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. The quality of your thought or the submodalities, यानी let's example, आप एक बहुत ही happy moment को याद कीजिए. Just remember a very happy moment. Just remember a very very happy moment. जो आपको excite कर सकता है, जो that gives you a complete pleasure. आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए. अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पैर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को नॉर्मल कर दीजिए, एंड देन गो टू इनटू दैट ब्यूटीफुल इमेजिनेशन ऑफ अ हैप्पी मोमेंट. हम मोबाइल पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, उसको कई लोग होंगे, उसको हम क्लैरिटी, कलर कॉम्बिनेशन, उसकी टोन को हम इंक्रीज करते हैं. नाउ एज अ वेरी गुड एडिटर इन ऑफ योर माइंड, क्या वो हैप्पी मोमेंट को आप और कलरफुल बना सकते हो? कैन यू इंक्रीज द साइज? जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दैट हैप्पी मोमेंट. अगर उसके अंदर कुछ साउंड है तो ट्राई टू लिसन टू दैट साउंड. स्मेल है तो स्मेल, टेस्ट है तो टेस्ट, वर्ड्स हैं तो वर्ड्स, म्यूजिक, और देयर इज अ बॉडी मूवमेंट. तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्विंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए उस चीज को याद करते हैं. एंड देन ट्राई टू फील वो चीज की स्माइल आप में आनी है, वो खुशी आनी है. इसके बाद अपना राइट हैंड ऊपर उठाए और धीरे धीरे इस राइट हैंड को नीचे करते जाएं. और उस स्पीड से आप राइट हैंड को नीचे करेंगे जिस स्पीड से आपकी वो हंसी, आपकी वो इंटेंसिटी, जैसे एक लीवर से आप उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, हैप्पी मोमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, स्लोली स्लोली इंक्रीज इट, और वो आपके हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में वो खुशी महसूस होनी है, वो स्माइल महसूस होनी है, वो एंजॉयमेंट. Just do it. How do you feel? कैसे फील कर रहे हो? Sometimes if you are very deep in it, वो टाइम पे भी उतनी खुशी नहीं होगी ना, उससे ज्यादा आप उसकी एनर्जी और उसकी खुशी को आप वापस लेके आ सकते हो. तो जब आप अपने कोई भी इवेंट को याद करते हो, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना इज कॉल्ड सबमोडालिटीज. एनएलपी में हम बोलते हैं उसकी क्वालिटी. वो ब्रेन के अंदर की मेमोरी की क्वालिटी को इंक्रीज करना है. समझने की कोशिश कीजिए, ब्रेन के अंदर को हम ट्यून कर रहे हैं, उस मेमोरी को हम जबरदस्ती ट्यून कर रहे हैं. उसके अंदर क्या चीज को अच्छा करना है, क्या चीज को कम करना है, क्या चीज को ज्यादा करना है. वी हैव टू डू. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम हर एक खुशी के मोमेंट को, उसकी इंटेंसिटी, उसकी इमेज क्वालिटी को, उसको साउंड क्वालिटी को, उसकी फीलिंग क्वालिटी को, उसके स्मेल, टेस्ट और उसके टच की क्वालिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो आपकी वो मेमोरी विल बिकम मोर पावरफुल, वेरी पावरफुल. दिस इज वन साइड. मेक इट मोर कलरफुल, बिगर एज पॉसिबल. से एग्जाम्पल देता हूं. I'll show you a figure. It's a black and white. इसको देखने में do you get that intensity of feeling? It's just एक मौसमी. अगर इसकी क्वालिटी को हम इंक्रीज करके देखते हैं, कलरफुल देखते हैं, you feel. और अगर आपके पास हो, अगर इसको स्मेल करते हैं, कितना बढ़िया. जस्ट इमेजिन, मेरे हाथ में नहीं लेकिन जस्ट इमेजिन मैं एक मौसमी हाथ में रखा हूं और उसको एक चाकू से काट रहा हूं, और जैसे जैसे काट रहा हूं उसकी स्मेल इंक्रीज हो रही है, उसके ड्रॉपलेट्स यहाँ गिर रहे हैं.
क्या स्मेल आ रहा है, एंड व्हेन आई कट दैट कंप्लीटली, और दो अगर हम लेके आते हैं तो जूसी टेक्सचर, अलग अलग छोटे छोटे बीन्स, और वो जो टेक्सचर होते हैं क्या ब्यूटीफुल लवली दिख रहे हैं. इट स्मेल्स सो वंडरफुल, एंड देन आई स्क्वीज इट. कैसे लगता है? नाउ वो लेमन या वो मौसमी आपके पास नहीं रहने के बावजूद यू कैन फील दैट इन दिस. किसी को स्मेल, किसी को टेस्ट, किसी को मुंह में पानी आ जाना. क्यों होता है? हम कभी कभी कोई चीज का स्मेल देखते ही उसको खाने का क्यों मन करता है? द रीजन इज हम वो इमेजेस को क्रिएट करते हैं. हमको पता नहीं है, इतना फास्ट प्रोसेस करते हैं कि हम उसकी छवि, हम उसकी इमेजेस को बनाना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम कोई क्वालिटी ऑफ इमेज को अपनी माइंड में, मेमोरी को बढ़ाना है, अच्छी मेमोरी को, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, और खराब मेमोरी है तो उसकी क्वालिटी को कम करना है. मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट, मेक इट डल, मेक इट स्मॉल, स्क्वीज इट. अगर आपको पुरानी बात को याद आती है जो आपको सताती है, वो इमेज को देखो अपने माइंड में, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करो, छोटा करो, जितना छोटा कर सकते छोटा करो, स्क्वीज करो. ये दो चीज को पहले लेते हैं, इसके बाद हम स्विच पैटर्न में जाते हैं कि हम उससे किस तरीके से यूज किया जा सकता है. अब ट्राई टू. और एक चीज आती है कि अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमको पता है कि पास्ट कब हुआ था, फ्यूचर क्या है, अभी क्या है. मतलब फ्यूचर इज ए परसेप्शन. फ्यूचर क्या है, आई एम नॉट सेइंग प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, आई एम सेइंग अ परसेप्शन की कल ऐसा हो सकता है. और आज आप कहाँ हो पता है, आपका पास्ट आपको पता है. वी कॉल इट एज ए टाइमलाइन. एक टाइमलाइन है. किसी को लगता है कि पीछे से सामने जा रही है, किसी को लगता है लेफ्ट से राइट जा रही है, किसी को लगता है राइट से लेफ्ट. वो डिपेंड करता है. जब हम एनएलपी के एडवांस क्लासेस करते हैं तो वो टाइमलाइन को कैसे डिफाइन करना है. उसी तरीके से जब हम कोई मेमोरी को याद करते हैं तो वो मेमोरी की भी एक पोजिशनिंग होती है. शायद हैप्पी मोमेंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, सैड मोमेंट यहाँ पर हो. अगर नहीं है तो आपको जबरदस्ती का बनाना है. मान लीजिए आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर, किस डायरेक्शन पर है, तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू क्रिएट कि हाँ चलो मैं पूरे हैप्पी मोमेंट्स को इस डायरेक्शन पर लेके आकर देखूंगा, पूरे सैड मोमेंट को मैं इस डायरेक्शन पर लेके आकर देखूंगा. नाउ लेट्स ट्राई टू टेक ए लिटिल स्मॉल एक्सरसाइज. अभी I am creating a very happy moment here. All my happy moment जिसकी मैं एकदम perfect color, perfect sound qualities, एक नहीं 4-5 मैंने याद कर पूरे को stack. That is what we call anchoring. यानी जितने ज्यादा मैं किसी चीज को बार बार देखता हूँ तो माइंड के अंदर मैं उसको एंकर करता जाऊंगा. मैं वहां पर एंकर कर. अभी मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरी पास की नेगेटिव चीजें हैं देखूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, छोटा करूंगा. देखूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, छोटा करूंगा. देखूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, छोटा करूंगा. उसको फ्रीज कर दूंगा. इसको मैं मूवी की तरह देखने की कोशिश करूंगा. नॉट ओनली स्टिल आई ट्राई टू क्रिएट की मूवी. जैसे मैंने मौसमी के बारे में बताया था, आई वाज मूविंग माय हैंड, इट्स लाइक अ मूवी. तो उसी तरीके से जितनी भी हैप्पी मोमेंट्स है उसको मैं मूवी की तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इसको क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रीज कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ, स्टिल कर दे रहा हूँ, एकदम छोटा कर दे रहा हूँ. Now I have done that. This is here and this is very big here. What I try to say is, आप जब आपको then एक इवेंट को लीजिए, एक आपकी सैड इवेंट को लीजिए, जिसमें से आपको इसकी इमोशंस को, इसकी इवेंट की क्वालिटी को, इसके मीनिंग को अगर आपको चेंज करना है, इसको छोटा किया. एक ब्यूटीफुल इवेंट जो बहुत खुशी का, उसको यहाँ देखो. सडनली व्हाट यू डू इज फ्रॉम हियर टेक दैट, एक शैक करके यहाँ लेके आके सी दिस. ट्राई टू सी दिस, फील लिटिल सैड, लेके आके खुश. सी इट खुश, सी इट खुश. डू इट 8 to 10 times. एक सेकंड ऐसा आएगा कि वो देखे तो यू विल बी फीलिंग a different emotion for that event. That is called switching over the pattern from one event to the other event. अगर आप ये नेगेटिव इवेंट को ले जाकर पॉजिटिव इवेंट में डाल देते हो तो ये नेगेटिव जो चीजें हैं वो उसकी इमोशन बदल जाएगी, या वो चीज याद भी रहे तो आपको वो उतनी तकलीफ नहीं देगी. दिस इज कॉल्ड द स्विचिंग ओवर ऑफ द पैटर्न फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम. ये वन ऑफ द
एनएलपी का एक एक्सरसाइज है। Then let's come to the major principles. There are 5 principles of success. अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है तो 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज हमको पता होना चाहिए हमको क्या चाहिए। कभी कभी हम खो जाते हैं कि वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, वी आर जस्ट रनिंग अराउंड। लेकिन जब अगर आपको पता होगी, जैसे अगर मुझे एक ग्लास पानी भी पीना हो तो मुझे पता है कि मेरे को ये ग्लास उठानी है, इतना पानी पीना है, इतना इतना टेम्परेचर चाहिए और मैं ऐसे पीऊंगा। दैट इज द प्रोसेस। यू शुड नो द आउटकम। आउटकम हर छोटी चीज से लेके बड़ी चीज के लिए कोई आउटकम डिसाइड करना होता है। व्हाट वी कॉल इट एज ए, लेट्स से, अ गोल फ्रॉम अ स्मॉल टू बिग। नाउ यूजुअली क्या होता है कि हम एक आउटकम डिसाइड करते हैं। आउटकम डिसाइड करने के बाद वो एक बहुत इजी चीज करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि हम उसके ऊपर एक मंत्र जैसा बना लिया कि मैं अचीव कर लूंगा, मैं अचीव कर लूंगा, मैं अचीव कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे। टेल मी, अगर आप सिर्फ एफर्मेशन लिखोगे, सिर्फ इमेजिन करोगे, आपको मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि आप उसकी एक्शन नहीं लेते। जब तक उस चीज की एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप जो चीज, अगर मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, मैं सोच लिया कि मुझे पानी पीना है, ये पानी पीना है, मैं उठकर पानी नहीं लूं या मैं पानी किसी से नहीं मंगाऊं, तब तक वो पानी मेरे पास नहीं आएगा। पानी आने के बाद मैं उठा के अगर उसे पीता नहीं हूं तो वो मेरे पेट में जाएगा। मुझे एक्ट करना है। उसी तरीके से सिर्फ एफर्मेशन लिखने से, सिर्फ इमेजिन करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको एक्शन। लेकिन एक्शन करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आपको मिले। आपको फिर फीडबैक लेनी है कि वो आप कहां तक पहुंचे हो उस गोल के ऊपर। हर पीरियड ऑफ टाइम्स पे, हर मौके पे आपको उस चीज की आपको फीडबैक लेनी है। और फीडबैक लेने के बाद मान लीजिए आप नहीं पहुंच रहे हो, लाइक एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं अगर गलत हूं तो मेरा कर्म गलत है, मैं अच्छा हूं तो मेरा कर्म अच्छा है और मैं मेरे कर्मों के हिसाब से भोगता हूं। एक चीज याद रखिए, हम अपने कर्म के हिसाब से तो हम भोगते ही हैं, हम कलेक्टिव कर्म के हिसाब से नहीं भोगते हैं। आज कोविड-19 है, मेरा कितना भी कर्म कोई कुछ भी रहे, डू यू हैव टू नॉट go into the collective karma of everybody, including the universe, including the cosmic, including the ecology? हमारी लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्फ, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एवरीथिंग हैपनिंग इन एंड अराउंड एंड और हर वो इंसान हमारे साथ जो जुड़ा है वो सबसे जुड़ा है। सिर्फ हमारा कर्म नहीं, हर चीजों का है। इसलिए हमको फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। इतना फ्लेक्सिबल रहना है कि कोई भी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। आज आप देख रहे हैं लाइफ हैज बिकम स्टिल, फिर वो सिचुएशन हमारे पास नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। आज हम अपने आप को सेफ रहने के लिए स्टे होम कर सकते हैं, अपने आप को दूर कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू यूज्ड टू डू रेगुलरली, आज आप वो नहीं कर पा रहे हो। जो आदमी इसमें फ्लेक्सिबल है, जो इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गया है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। हम आज यहाँ तक ग्रो हुए हैं, क्यों ग्रो हुए हैं? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम इवॉल्व हुए थे, हमको ना घर के बारे में पता था, ना छत के बारे में पता था, ना कंस्ट्रक्शन के बारे में पता था। हम जंगलों में रहते थे। जैसे हमको जो चाहिए था हमने इवॉल्व करते करते यहाँ तक आज पहुंचा है। तो जो सिचुएशन आती है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, वो फैसिलिटी है कि हम इवॉल्व हो सकते हैं। जो इंसान इस चीज को जल्दी से पहचान सकता है, जो फ्लेक्सिबल इस चीज से हो सकता है, जो इस सिचुएशन को जल्दी अडॉप्ट करेगा, वो अपनी लाइफ को बदलेगा। तो द पीपल हु सक्सीड मोर, उनको इस चीज को याद रखना है कि कोई भी सिचुएशन आए उसके लिए ये आ गई, बहाना नहीं, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, बहाना नहीं, ये आई है, एक्सेप्ट दैट। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके अंदर से आप जो दायरा है वो दायरे के अंदर आप क्या कर सकते हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से खुशहाली से जी सकते हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। द मोर फ्लेक्सिबल यू आर,
सक्सेस विल कम मोर फास्टर। और एक ज्ञान दें, खुशी गोल रीच होने के बाद नहीं होती है। लाइफ लॉन्ग गोल कभी रीच नहीं होगे। आज एक गोल रीच हुआ क्योंकि नया गोल इसके बाद हमारे पास सामने आ जाता है। वी आर इन ए प्रोसेस। हम बोलते हैं पाथ पे, हम चलने के रास्ते पे हैं। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमारी मंजिल मिल चुकी है, क्योंकि एक मंजिल पाते ही दूसरी मंजिल का रास्ता शुरू हो जाता है। इसलिए खुशी हमें मंजिल पाने से नहीं, हर रास्ते में, हर क्षण में, हर सेकंड में, हर हर जो भी सिचुएशन है उसके अंदर हमको खुश रहना है। उस खुशी के इमेजेस को बड़ा करना है और नए इमेजेस को डालना है, वो हैप्पी मोमेंट्स को डालना है। तब जाकर हमारी लाइफ होगी। वो हैप्पी मोमेंट्स को बार बार एंकर करके, स्टैक एंकर कर कर उसको हमको आगे बढ़ाना है। जो इंसान इस चीज को कर सका, समझिए, ही इज द अल्टीमेट सक्सेसफुल पर्सनालिटी। वो अपनी लाइफ में एकदम बहुत ही आगे, बहुत ही दूर तक पहुंच सकता है। So in the end, it is all about time, how you spend it. The day you can laugh with full happy feelings for no reason at all, you will have it all. ये याद रखिए। अगर अगर हम बोलते हैं कि आखिर में क्या है, आखिर में it's just how you start laughing, how you enjoy life. किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो हमको करना है। और एनएलपी के कई एक्सरसाइजेस हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी। और एक आध एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिया है, जैसे कि कोई इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो इवेंट की मीनिंग हम देते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाए तो वो इवेंट की मीनिंग हम डिफरेंट देने की कोशिश करें। सेकेंड, हैप्पी और सैड मोमेंट्स को अलग करते जाएंगे तो एक हमारे माइंड में एक प्रोसेस बनेगी कि एवरी इवेंट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि बार बार जो चीज को देखते हैं हमारी जिंदगी वही बन जाती है। आज याद कीजिए, अगर मेरे लाइफ में कुछ गलत होता है तो मेरे को पूरे सैड इवेंट्स ऑफ माय पास्ट याद आएंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है, स्माइल होता है, तो वी हार्डली रिकलेक्ट देम द पास्ट इवेंट्स। तो ये हमारे में है, हमारी कैरेक्टर बनी हुई है। अगर इसको थोड़ा सा स्विच करें कि अगर सैड आता है, आया है, वो इमोशन को फील करो, उसको छोटा करो एंड नए इमोशंस ऐड करके आगे बढ़ो। और जब भी नया पॉजिटिव या हैप्पी इमोशंस आता है उसको स्टैक करो। वो तब आप पूरे याद कीजिए कि कहाँ कहाँ बहुत खुश हुए और कैसे हुए थे। then you see your change will start becoming different and the flexibility will start coming. Flexibility डेफिनेटली आएगी। वो हमारे एक्शन से, हमारे बर्ताव से, हमारे ऊपर है कि कैसे करना है। और वो चीज का एनएलपी गिव्स यू ए थिंग इज इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द इमेज, इंक्रीज द परसेप्शन ऑफ दैट इमेज, इंक्रीज द, उसको आप मूवी में देखिए, उसको आप कलरफुल देखिए, उसको उसमें आप मस्ती डालिए। It's something like you do let the dance begin in your life. Let your body just flow. जब आपकी बॉडी एकदम फ्लो होती है, मूवमेंट होता है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एकदम, बिकॉज जब बॉडी को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, एकदम रोक के रखते हो, तो क्या होगा कि आपके इमोशंस नहीं आती है। जब आपकी बॉडी को फ्लो करते हो, छोड़ देते हो, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब फ्री होता है then creativity acts. When creativity acts, कोई भी सिचुएशन को आप टैकल करते हो, कोई भी सिचुएशन को टैकल कर आगे बढ़ सकते हो। चॉइस आपकी है। Let your body just flow.
So let the body flow. When the body flows, when you are in a different kind of a flow, then automatically mind will flow. Mind एकदम different हो जाएगा. That is the best meditation you will have. I'll tell you certain more things after we have certain questions. अगर किसी के questions है तो let's discuss on that and then we will get ahead. Yeah, Satnam, come. What are the questions? So the first question was how we can change a conscious level. Yeah, conscious level. See, NLP maximum होता है conscious level में. Subconscious level is going you to very deep level of understanding. तो consciously we have to first understand. जैसे मैंने बोला कि ये image quality को आपको बढ़ाना है, तो consciously you are doing the effort. लेकिन आंख बंद करके थोड़ा सा subconscious level में जब जाते हैं तो उसकी quality increases. तो you have to consciously think, deliberately think, and then use the subconscious level to go ahead. That is why NLP और hypnosis साथ में जाते हैं. जब हम सेशंस करते हैं तो NLP एंड hypnosis पहले लॉजिकली उनको समझ में आना है कि क्या करना है, इसके बाद उसको ट्रांस में ले जाकर उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं. The subconscious is to increase the quality of that. And some views on yoga for behavioral flexibility. Yoga is the best thing which India has given, which the world has today, क्योंकि योगा से not only the body, your mind also gets very flexible. Only thing is what I suggest here is जब भी आप योगा कर रहे हो स्ट्रेस से मत करो कि ये मेरा बेंडिंग होगा नहीं होगा, मैं कितना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. उसको भी एक मस्ती में करो, उसको भी एक ऐसे फ्लो में करो जितना हो रहा है. उसको जब आप फ्लो में करोगे, एक फेस के ऊपर एक रौनक रख के, हैप्पीनेस रख के करोगे, आप देखोगे कि आपकी फ्लेक्सिबल लेवल ज्यादा हो जाएगी, आपकी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी एंड योर माइंड बिकम्स ब्लैंक. अगर आप सीरियसली योगा 1 घंटा करते हो तो आप देखिए कि वो टाइम पे यू आर मोर इन्वॉल्व्ड इनटू व्हाट यू आर डूइंग रादर देन व्हाट हैज हैपेंड द अदर वे अराउंड. स्विच टेक्निक के बारे में थोड़ा और बताइए. स्विच टेक्निक इज समथिंग लाइक जो चीज हमको नहीं चाहिए उस चीज को ओवरलैप कर रहे हैं चीज से जो चीज हमारे लिए अच्छी है. तो इसमें क्या होता है, बार बार जब ओवरलैप करते हो और जो अच्छी चीज है उसको बड़ा करते हो तो जो चीज नहीं चाहिए, जो इमोशंस हमको नहीं चाहिए, वो अपने आप धीरे धीरे वैनिश हो सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल खाने के लिए होता है. मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने की आदत है जिसकी वजह से आपका फैट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मोटापा इंक्रीज हो रहा है. आपको आइसक्रीम नहीं खाना है. आइसक्रीम की क्वालिटी को देख लीजिए. दूसरी चीज को यहाँ पर उल्टा दिखा रहा हूँ, स्विच पैटर्न इन रिवर्स डायरेक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको कोई चीज खाने से उल्टी आती है, जब वॉमिट आता है, और मे बी इट इज द सिमिलर कलर ऑफ द आइसक्रीम, द कलर जो आप देखते हो. तो क्या कीजिए कि इसको लेके आके इसको बड़ा कीजिए एंड फील लाइक वॉमिटिंग. जब इस तरीके से आप 2 बार तो स्विच पैटर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली योर ईटिंग ऑफ आइसक्रीम विल बिकम लेस. So even day to day life events में भी हम स्विच पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं? Day to day life event की वही है कि अगर आप that is consciously you are aware कि ये चीज मैंने किया वो गलत है. जब आपने अवेयर कर लिया तुरंत उसको स्विच पैटर्न करके नया क्या पैटर्न करना था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आ सकता था, उसको अगर हम जैसा मैंने बताया कि फियर क्या है, फियर इज इन द माइंड. मेमोरी क्या है, इट इज इन द माइंड, इट इज नॉट हैपनिंग नाउ. सैड इवेंट अगर हम याद कर रहे हैं वो हमारे माइंड में है, हैप्पी इवेंट याद कर रहे हैं हमारे माइंड में, वो अभी हो नहीं रहा है. और हम ये देखते हैं कि कई बार वो इवेंट उस टाइम पे हम उतने खुशियां उतने दुखी नहीं होते जितना आज इस समय होते हैं. तो इस चीज की हमारे माइंड में है. तो अगर आपको कॉन्शियसली पता चल गया कि ये चीज मैंने जो किया है वो गलत है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कौन सी चीज करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, वो चीज को स्विच अगर माइंड में थिंकिंग में करके परसीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम 2 या 3 बार में और नेक्स्ट टाइम इट बिकम्स एन ऑटोनोमस इन योर लाइफ. Can we do NLP on our own or do we need an expert for that? Yeah, NLP you can do it on your own if you learn NLP हम उसका कोर्स भी सिखाते हैं. NLP अगर आप कोर्स करते हो तो आप डेफिनेटली अपने आप में कर सकते हो. But when it comes to very big emotions or anything, what we do is hypnosis is also required. जो ट्रांस जो होता है कि सेल्फ हिप्नोसिस में और एनएलपी में फिर आपको हिप्नोसिस लर्न करके वो चीजों को रिकॉर्ड कैसे किया जाए और उसके बाद
उसमें से किस तरीके से आपके ऊपर सबकॉन्शियस में जाए वो आप कर सकते हो। नहीं तो बेटर इज गो टू एन एक्सपर्ट एंड वी आल्सो डू NLP and hypnosis sessions online. Like if we are having the same emotions, like positive and emotions also and negative emotions also for the same person, so how to handle that? रहेगा क्योंकि इकोलॉजी वही इंसान को कभी हम पॉजिटिव ढंग से देखते हैं कि कुछ एक्ट करता है, वही इंसान को हम नेगेटिव ढंग से देखते हैं कुछ एक्ट करता है। आज आप बच्चों को डांटते हो मान लीजिए, या किसी को आप डांटते हो, क्यों डांटते हो? फर्स्ट थिंग इज वो बच्चा या वो पर्सन जो है आप जो चाहते हो वो नहीं करके उसके विपरीत कर रहा है। आप जो चाहते हो वही चीज वो करे, ये जरूरी है, ये आपने सोचा है कि ये जरूरी है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि उनकी परसेप्शन ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डांट दे रहे हो, गुस्सा कर दे रहे हो और अपने आप को एक समझौता कर ले रहे कि मैंने किया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप 10 बार लोगों को डांटोगे तो भी वो इंसान बदला है, 10 बार पॉइंट आउट करोगे तो भी इंसान बदला है, नहीं बदला है। तो आप उसको बदलने के लिए अगर आप तय किए हो तो आपको ऐसी एक्ट्स करनी पड़ेगी कि उस तरीके से वो इंसान ऑटोमेटिकली बदले। जैसे आप छोटा बच्चा होता है, वो खाना नहीं खाता है तो वेरी स्मॉल किड आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप उसको कभी मोबाइल देते हो, कभी विच इज वेरी बैड, कुछ ना कुछ बहला के करके आप उसको कुछ ना कुछ करके खिलाते हो। वहां उसको डांटना मारना नहीं चलता है, बट वी फॉरगेट टू डू व्हेन वी ग्रो अप। तो यू हैव टू वो पैटर्न को क्रिएट करना है, वो क्रिएटिविटी को लाना है कि आपको अगर उसमें चेंज लाना है या अपने में चेंज लाना है तो पैटर्न को समझकर उस पैटर्न के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंकरिंग के बारे में थोड़ा बताइए ना। एंकरिंग क्या होती है कि जैसे आप अगेन मैं सैड मोमेंट बोलते ही आपने वो एंकरिंग हुआ ना कि आप पूरे याद किए हो। दैट इज समथिंग व्हाट एक कोई चीज जो ट्रिगर करती हो, ट्रिगर कर हमको याद दिलाती है कि ये यानी एक सिचुएशन हमारे में ट्रिगर किया। अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल देता है तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है ये तो हमेशा ऐसे ही है, ये कैरेक्टर है वो, क्योंकि उसकी एक आदत आपके माइंड में इतना ट्रिगर करती है कि इट हैज ब्लर्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज फ्रॉम इनटू योर माइंड। वही एंकर को वो चीज को अगर वो आदमी मान लीजिए 1000 अच्छी चीज किया फिर भी आप उसको याद नहीं रखोगे, वो एक चीज की वजह से वो पूरा परेशान होता है। अभी अगर वो उस आदमी के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं या अपनी लाइफ को अच्छे बनाने तो इस 1000 जो चीज अच्छी की उसको एंकर करता जाए, तो ये जो एक चीज भी नेगेटिव होती है उसको नजरअंदाज करके क्रिएटिविटी एक न्यू एंकर के साथ आप काम करोगे। हाउ टू ब्रिंग reduce the gap in generation, difference of opinions in gap in generation is again thinking. Who said is an age? अगर आज मुझे बच्चे के साथ रहना है तो बच्चे की तरह मस्ती करूंगा तो मैं बच्चा हो गया। एक बुजुर्ग के साथ रहना हो तो मैं उनकी तरीके से बात करूं तो मैं बुजुर्ग हो गया। दैट इज योर एटीट्यूड कि आप उस समय उस इंसान के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो। इट इज नेवर, ये नहीं हो सकता है कि एज के हिसाब से ये जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप इज नथिंग बट नॉट ट्राइंग टू बिहेव इन द वे द अदर पर्सन इज। Can vertigo go away with the help of switching technique, switch pattern? Switch pattern नहीं, NLP के दूसरे exercises हैं which can depending upon the severity of that उसके ऊपर वर्क करते हैं। पैरालिटिक केसेस के ऊपर भी हमने NLP पे वर्क किया है जिसमें फिजियोथेरेपी में उनको ज्यादा रिजल्ट आए हैं, फास्टर रिजल्ट आए हैं और रिकवरी रेट भी बहुत फास्ट हुई है। That can help. How to overcome overthinking, especially negative thoughts? अभी बताया मैंने, कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू लिव हैप्पीली, स्टार्ट। एंड सेकंड, एक सेकंड, आपने ये भी पूछा तो मैं बताता हूँ। अगर मुझे सैड होना है तो क्या होगा? मेरी बॉडी झुकेगी, मेरे शोल्डर्स झुकेंगे, मेरा फेस झुकेगा, मेरे फेस के ऊपर एक सैडनेस आएगी। नाउ सपोज ट्राई टू स्टैंड एरेक्ट, लुक फॉरवर्ड, ब्रीथ एंड वॉक, और आप सैड मोमेंट को याद करके बताओ और सैड होके दिखाओ, नहीं होगा। यानी आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप मस्ती में डांस करते हो, एंजॉय करते हो। जब वो करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवर्स साइकोलॉजी में वो चेंज हो जाएगा।
Please give techniques of auto suggestion to enhance success or attain more success. ऑटो सजेशन यही है कि from today I will recollect every happy moment of my life and try to laugh for no reason at all in my life. एक बच्चे की तरह हमेशा खुश रहते हुए, कोई रीजन हो या नहीं हो, फिर भी हंसते हुए. और ऑटो सजेशन यही है कि I am the happiest person in this world. Everything will fall in that. How to overcome anxiety or depression? Anxiety is again thinking. Depression is again thinking. डिप्रेशन 24 घंटे नहीं रहता, एंजाइटी 24 घंटे नहीं रहती है. क्यों आती है? जब आप सोचते हो. आपके बिहेवियर पैटर्न, वो थिंकिंग को जब अगर आप हटाते हो, थिंकिंग में से बाहर निकलते हो, तब जाके आपका टोटली एंग्शियसनेस और वो जाएगा. So one of the students has written that how to be more consciously aware of my thoughts. मेरे थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं कैसे उनको कॉन्शियसली अवेयर हो सकूं और उनको कैसे मैं कंट्रोल कर सकूं? या वेरी गुड क्वेश्चन. उस समय शायद आपको पता नहीं चले, लेकिन जब आपने ये पूछा है तो दैट मींस यू नो कि कौन से थॉट आपको वो गलत लग रहे हैं, कौन से अच्छे लग रहे हैं. तो जब कभी-कभी क्या होता है कि हम इतने ट्रिगर हो जाते हैं कि इवेंट के टाइम पे हम शायद वी आर नॉट रॉबोट की हमारे कि सब कुछ एक सेकंड में ठीक हो जाए. तो आप अगर मान लीजिए आपको किसी चीज की वजह से तकलीफ हुई है, तो जब आपको पता चल जाता है या ये बिहेवियर आपको गलत लगा, पता चल जाता है, तो थिंक अबाउट इट, व्हाट वाज द बिहेवियर यू शुड हैव डन कि ये चीज ना हो. वो चीज अगर आप याद करते हो तो ये बिहेवियर को छोटा कर इस बिहेवियर को एकदम बड़ा बार बार देखते जाएं, तो इस तरीके का जब ट्रिगर आएगा तो एक न्यू बिहेवियर डेवलप होगा. How to remove our fears? Fear removal is a different technique for different fears. तो इसलिए वो जैसे अगर मान लीजिए आपने देखा होगा मेरा स्लाइड में स्पाइडर एंड स्नेक, when usually actually जो fear होता है कि how do you prove कि इस तरीके की चीज का fear गया है या नहीं गया है, तो उसके लिए पहले हमको सेशंस करने पड़ेंगे, फिर इसके बाद वो इंसान को वो सिचुएशन में डालकर टेस्ट करना पड़ता है कि fear गया या नहीं. But it can be taken out very easily and very quickly and very fast. No other means can do so fast the way NLP does. Last but one question. Can a person change his or her inherent nature and behavior through NLP? या NLP teaching में कैसे काम आएगा? NLP techniques training में कैसे काम आएंगे? आज वर्ल्ड वाइड अगर आप टोनी रॉबिन्स को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, मैक्सिमम जो चीजें होती है वो NLP के इस सिस्टम से. NLP का अर्थ है कि आपका माइंड क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या करने से क्या डिफरेंट चलेगा. तो वो चीज तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. यू शुड नो, पैटर्न्स को समझना है, NLP को समझना है, और आप ट्रेनिंग में भी उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर. सी, मैं NLP पढ़ाता भी हूँ. 90% ऑफ माय 90% प्लस ऑफ माय NLP इज काउंसलिंग, करेक्टिंग पीपल, एनकरेजिंग पीपल टू ग्रो, उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाना, उनमें वो एंकर्स क्रिएट करना कि वो दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, वो करना, प्लस एनी ऑफ देयर इल हेल्थ जो साइकोलॉजिकली है उसमें से उनको कैसे बाहर आना, वो करते हैं. प्लस जहां पर भी हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं और ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ट्रेनिंग में NLP के टेक्निक, टोटल NLP नहीं सिखाते, NLP के टेक्निक्स रिलेटेड चीजों को सिखाते हुए पाके हम देते हैं. इट्स अ वेरी गुड टूल. Last question. One of your old students, Kalpesh Akhane जी, जिन्होंने already आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, so he is asking, sir, आप जो किस प्रिंसिपल आपने सिखाया था ट्रेनिंग सेशन में, उसे दोबारा एक बार एक्सप्लेन कीजिए. किस प्रिंसिपल का मतलब है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड. हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी को आप याद करते हो और उसको याद करते ही एक पैल्पिटेशन आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आता है, वो आदमी के बारे में सोचते ही आपको कुछ अजब सा लगता है. तो उसको हम स्पेशली बच्चों को हम सिखाते हैं. कभी एग्जामिनेशन फियर हो गया या कोई टीचर का फियर हो गया, कोई पेरेंट का फियर हो गया, तो उनके दिमाग में उस पर्सन का कार्टून बनता है. मान लीजिए एक पर्सन है जिसको आपको देखते बहुत इरिटेशन आता है, तो आपके मन के अंदर उसको एक अलग तरीके की टोपी पहना दो, नाक के अंदर कुछ लगा दो, बाली लगा दो, उसको एक छोटे छोटे कपड़े पहना दो, और एक उसकी एक अलग अलग इमेज और अलग और उसकी आवाज में जब भी कुछ बोल रहा है तो ऐसे जैसे विकी बाबा की तरह आपको जैसे सुनाई दे रहा हो,
वैसे कर दो। तो जब भी वो बोलेगा तो आपको ट्रिगर होते ही, हाँ, आपको अंदर हंसी आएगी, बट यू विल आई टेल यू विल बी मोर नियरर टू दैट पर्सन, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव चीज प्रोसेस करना इस वजह से बंद कर देगा। हाँ जी, काफी सारे क्वेश्चंस है। आई वुड, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेल इट या मुझे मैसेज करने के लिए प्लीज आप उनको। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या इंडिविजुअली भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट हाउ टू गो अबाउट एंड डील। And one last question, Rupa Shukla, your previous student, she is asking कि उत्सव क्लास आप वेबिनार के थ्रू फिर से दोबारा कर सकते हैं? नहीं, उत्सव क्लास वेबिनार के थ्रू मुश्किल है, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग क्लास। वो एक ऐसा क्लास था जिसके अंदर हमने लाइफ की हर चीज, यानी वो जो जादू टोना से लेकर भूत प्रेतों से लेकर बाबा लोगों की एनर्जी प्लस एंड माइनस से लेकर माइंड कैसे काम करता है, इधर किली के ऊपर कैसे सोना है, आग में कैसे चलना है, कांच में कैसे चलना है, क्या क्या साइंटिफिकली व्हाट इट इज, वी हैव प्रूव्ड इट एंड वी हैव शोन दैट। तो वो चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती है। हाँ, दो चीज मैं लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन, एक है सेक्रेड स्पेस वर्कशॉप में लाने वाला हूँ। दिस सेक्रेड स्पेस वर्कशॉप इज कि अभी हम सब घर पे हैं, तो एक्चुअली हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी जो है घर से आती है। यहाँ पर मैं ये जो वर्कशॉप है 2 घंटे का होगा, उसके अंदर सॉरी 1.5 आवर का क्लास होगा। इसके अंदर हम वास्तु के जो मिथ्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कोई तोड़फोड़ नहीं, आपके अंदर घर के अंदर जो है उसके अंदर किस तरीके से आपको रीअरेंज करना है, जो जनरल है वो चीजों को जनरल कैसे रीअरेंज करना है, कैसे आपकी घर की ऊर्जा बढ़ानी है, कैसे आपके माइंड को पीसफुल रखना है, और आपको किस तरीके से अच्छा रखना है, वो विल बी कमिंग आउट ऑन 29th of April at 4 PM। यूजुअली हम उस क्लास का 2000 रुपए चार्ज करते हैं, दैट विल बी चार्जेबल बेसिस फॉर ओनली 199। एंड देन एक बहुत ही बढ़िया आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये अगर आप वर्क करते हो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। वी आर गोइंग टू कम आउट विद ए वर्कशॉप, सिग्नेचर एनालिसिस वर्कशॉप। ग्राफोलॉजी एक बड़ा वर्कशॉप है जिसके अंदर वी हैव हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर, इट्स अ वेरी बिग वर्कशॉप। उसको हमने शॉर्ट करके एक और वर्कशॉप बनाया था कि जहाँ सिग्नेचर एनालिसिस, यानी किसी की भी साइन देखकर अब उसके बारे में बताना, उसके बारे में समझना, उसके साथ हम कितना रहना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, ये समझना, ये आप जान सकते हो। प्लस आपकी सिग्नेचर किस तरीके से ऐसी बनाई जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक बन जाए और आपकी एक वाइब्रेशन बन जाए, वो हो सकता है। हाँ, ये याद रखिए कि आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए सिग्नेचर का स्ट्रोक क्रिएट करना होता है। ये वर्कशॉप हम करेंगे 2 मई के दिन, वो ये 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। इसका एक्चुअली जब हम यहाँ पर करते थे 15,000 रुपए लेते थे, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट ओनली फॉर 2,999। ये सब चीजों का आपको मेल और मैसेज मिल जाएगा। We'll be coming out with this workshops. We had a very nice session, I believe, and I wish you all the best. Stay safe, stay healthy. That is my motto, and you should also do stay safe and stay healthy. All the best. Take care.